حیدرآباد کے کوٹھی علاقے میں واقع کوٹھی ویمنس یونیورسٹی کی طالبات نے یونیورسٹی کو UGC میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ ذرائع نے بتایا کہ کوٹھی علاقے میں واقع چاکلی علما وومن یونیورسٹی کی طالبات نے ہفتے کو کالج میں احتجاج کرتے ہوئے کوٹھی ویمن یونیورسٹی کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں شامل کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ احتجاجی طالبات کا کہنا تھا کہ پچھلی BRS حکومت نے وومنس کالج کو وومن یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اسے UGC سے یونیورسٹی کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ حال ہی میں کانگریس حکومت نے اس کا نام بدل کر چاکلی علما وومنس یونیورسٹی رکھا ہے، لیکن یہ UGC میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔ طلباء نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو طلباء اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں انہیں کس طرح سے اسنادات دیے جائیں گے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ریاستی حکومت فوراً اس معاملے میں مداخلت کرے اور کوٹھی وومنس یونیورسٹی کو UGC میں شامل کرے۔ آسٹریا کی سفیر برائے ہندوستان کیتھرین ویسر نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے خیر سگالی ملاقات کی۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ہفتے کو آسٹریا کی سفیر برائے ہندوستان کیتھرین ویسر نے چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے جوبلی ہلز میں واقع ان کی رہائش گاہ پر ایک خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر آبپاشی وزیر اتم کمار ریڈی و دیگر افسران بھی موجود تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آسٹریا کی سفیر کو یادگار مومنٹوز پیش کیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے تلنگانہ میں جاری جامع گھریلو سروے کے عمل میں حصہ لیتے ہوئے اپنی تفصیلات درج کروائی ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں جامع گھریلو سروے کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی سربراہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے سروے کے عمل میں حصہ لیا۔ شمار کنندہ مادھوی نے بیرسٹر اسد الدین اویسی اور ان کے خاندان کی تفصیلات درج کی۔ اس موقع پر اپیندر، زونل کمشنر چارمینار وینکنا، ڈپٹی کمشنر راجندر نگر روی کمار کے علاوہ وارڈ انچارج سعید بھی موجود تھے۔ GHMC کے عہدیداروں نے سروے میں حصہ لینے کے لیے وقت نکالنے پر رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے۔ السلام علیکم، میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے تمام تلنگانہ کے دیکھنے والوں کے لیے اور خاص طور سے شہریان حیدرآباد اور حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے عوام سے اپیل کرنے کے لیے یہ ویڈیو میسیج کے ذریعے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ حکومت تلنگانہ کی طرف سے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی طرف سے جو پورے تلنگانہ میں سوشو اکنامک، ایجوکیشنل، امپلائمنٹ، پولیٹیکل اور کاسٹ سروے جو ڈور ٹو ڈور ہاؤس ہولڈ سروے ہو رہا ہے، جس کو ہم سماجی، معاشی، تعلیمی، روزگار، سیاسی اور کاسٹ سروے جو ہو رہا ہے، آج میں نے اپنے گھر پر زونل کمشنر نائک صاحب کو، ڈپٹی کمشنر صاحب کو اور ہمارے انیمیریٹر محترمہ مادھوی صاحب آئے تھے۔ میں نے اپنے تمام گھر کی، اپنے افراد خاندان کی تمام تفصیلات اس کوشچنیر میں نے بھر کے دی ہیں، جس میں 45 سوالات ہیں اور بہت آسان ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ہاؤس ہولڈ سروے میں آپ لوگ حصہ لیجئے، کیونکہ اس سے حکومت کے پاس جو انفارمیشن یا ڈیٹا جمع ہوگی اس کی بنیاد پر کئی غریب لوگوں کو، خاص طور سے جو دلت ہیں، آدیواسی ہیں اور جو بیکورڈ کلاس سے ان کا تعلق ہے، ان تمام کو حکومت سے مستقبل میں فیوچر میں جو آپ کو سہولتیں ملے گی اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے میری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ اس ہاؤس ہولڈ سروے میں حصہ لیجئے۔ جو آپ کے گھر پہ آتے ہیں اس فارم کو آپ لوگ فل کریے، آپ سے وہ سوالات کریں گے، جو کچھ آپ کو معلوم ہے اس میں حصہ لیجئے۔ وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے زیر اہتمام انسانی زنجیر بنا کر اسکون کے راہب چنمے کرشنا داس کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں اسکون کے راہب چنمے کرشنا داس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی جانب سے چنمے کرشنا داس کی رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کو وشوا ہندو پریشد اور بجرنگ دل کے زیر اہتمام انسانی زنجیر بنائی گئی اور سوامی چنمے کرشنا داس کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس دوران بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے
तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की भी मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत से फौरन कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया गया है। जिले कोमरम में आसिफाबाद के कागज नगर में शेर की दहशत जारी। जुमा को एक खातून को हलाक करने के बाद हफ्ते को शेर ने एक किसान पर हमला कर दिया। जुमा के रोज कागज नगर के ईस गांव में शेर के हाथों एक खातून की हलाकत के बाद हफ्ते के रोज सिरपुर मंडल के डबागुड़ा गांव में एक खेत में कपास चुनने वाले किसान पर शेर ने हमला कर दिया। मुकामी लोगों ने बताया कि आर सुरेश नामी किसान की गर्दन पर चोटें आई है। सुरेश ने खतरे को भांपते हुए फौरन खुद को शेर के जबड़ों से आजाद कराने में कामयाबी हासिल की है। जख्मी सुरेश को फौरी तौर पर कागज नगर के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई गई है। शेर के हमलों के लगातार वाकयात ने कागज नगर मंडल के तकरीबन 15 गांव के रिहायशियों को खौफजदा कर दिया है। शेर की नकलो हरकत के बाद गांव वाले खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने शेर का पता लगाने और हमलों को रोकने की कोशिशें तेज कर दी हैं। ड्रोन कैमरे की मदद भी ली गई है। बताया गया है कि हफ्ते को कागज नगर मंडल के आरीगुड़ा गांव के करीब शेर देखा गया। तुर्की के सफीर फिरात सुनेल ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सरमायाकारी और लेन देन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। जराये ने बताया है कि तुर्की के सफीर फिरात सुनेल ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने ममालिक की तरफ से हिंदुस्तान और रियासत तेलंगाना में की जाने वाली सरमायाकारी और लेन देन के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सफीर को मुबारकबाद पेश की और मोमेंटोज भी पेश किए गए। इस मौके पर वजीर आबाशी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा ओहदेदार भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में एक खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि विजयनगरम जिले के पोलीपाली गांव में श्रीकाकुलम से विशाखापट्टनम जाने वाली कार डिवाइडर से टकराने के बाद उलट गई और उसी वक्त मुखालिफ सिमत से आ रही एक लॉरी ने उस कार को टक्कर दे दी। बताया गया है कि लॉरी की टक्कर देने की वजह से कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल मुंतकिली के दौरान फौत हो गया। पुलिस ने बताया कि 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और हादसे की वजूहात पता लगाने में मसरूफ हो गई है। नलगुंडा जिले के नागार्जुना सागर हल्के के एक स्कूल में समाजी इल्म के टीचर के तालिबात के साथ बदतमीजी करने और उन्हें जिनसी तौर पर हरासा करने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक नागार्जुना सागर मंडल के निदामनूर मॉडल स्कूल में समाजी इल्म पढ़ाने वाले अंजनीलू नामी उस्ताद ने तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा किया और उनके साथ बदतमीजी भी की, जिसके बाद तालिबात ने प्रिंसिपल से रुजू होते हुए इस बात की शिकायत की। वालिदैन को तालिबात के साथ जिनसी हरासानी किए जाने का इल्म होने पर वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने स्कूल के सामने एहतजाज करते हुए टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। వేరే వేరే ఏయో టాపిక్స్ చెప్తా సార్ ఆ లెసన్ అంటే డేటింగ్ ఉందా సార్ చూడండి ఆ చాప్టర్ ఏంటి సార్ ఆ చాప్టర్ గురించి చెప్పాలి సార్ ఆ చాప్టర్ లో ఒక మ్యాటర్ అయితే డేటింగ్ చూడు సార్ ఒక టాపిక్ గురించి అడిగితే ఇట్లా ఏంది సార్ చీ అన్నందుకు మీరు బోరా పెళ్ళైనాక అని అంటారు సార్ సార్ వాళ్ళు పిలుస్తున్నారు మన తలకాయ దిమాగ్ పనిచేస్తున్నా అని తిట్టాడు సార్ మన अंजुमन सैयद जदगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दरगाह अजमेर शरीफ को मंदिर करार देने की दरख्वास्त को फिरका वाराना सतह पर समाज को तोड़ने की दानिस्ता कोशिश करार दिया है। अजमेर की एक मुकामी अदालत ने दरगाह अजमेर शरीफ को मंदिर करार देने की दरख्वास्त पर दरगाह कमेटी, अक़लियती उमूर की वजारत और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। दरगाह कमेटी के अहदेदारों ने इस पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन अजमेर दरगाह के खादिमों की नुमाइंदगी करने वाली तंजीम अंजुमन सैयद जदगान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
अर्जी को फिरका वाराना खतूत पर समाज को तोड़ने की दानिस्ता कोशिश करार दिया है। सेक्रेटरी सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि दरगाह फिरका वाराना हम आहंगी और सेक्युलरिज्म की अलामत है। वो अक़लियती उमूर की वजारत के तहत आती है और ASI का उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में कम्युनिटी ने फैसले को कबूल किया था और इस बात का यकीन था कि इसके बाद इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, लेकिन बदकिस्मती से इस तरह की चीज़ें बार बार हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की मिसाल हमारे सामने है और ये सब बंद होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अंजुमन को इस केस में फरीक बनाया जाए। 2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद ज़ादगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है, और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगाह आर हेरिटेज खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, दे परफॉर्म प्रीस्टली फंक्शंस, मतलब पंडों का काम करते हैं, मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशिएंट बट इंटीमेट, हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का, बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मज़ार अक़दस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं, और दे लुक टू द कंफर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस व्हाइल इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है। 1915 का है, जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है। उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहाँ तकरीबन कोई 8 मुतवल्ली रहे। 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाज़िम का रोल है वो मुतवल्ली किया करते थे, और उसमें 8 हिंदूज रहे, किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज थे मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजुरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगलों के ज़माने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई। ये दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिस कोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वहीं मज़ार है जहाँ आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहाँ झरने होते, पहाड़ होते, तो वो झाला है, झरना नहीं पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआं होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी, तमाम दरगाहें उठा के देख लें आप। हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है। साबिर बाग की दरगाह ले ले, करियर रुड़की में गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झंडा है तो मंदिर होगा। होली मक्का में जमजम है, पानी है जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का, मजहब का ताल्लुक रहा है। ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे, महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई। 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मोसराम बाग डिवीजन में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने हफ्ते को मलकपेट हल्के के मोसराम बाग डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती कामों का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने सूर्यापुरम कॉलोनी के इंडोर स्टेडियम में मोसराम बाग डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा कामों और नए तरक्याती कामों के आगाज़ के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास भी मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स, महकमा बल्दी बरकी और आब रसानी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मकीन भी मौजूद थे। महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए देने का हुक्म वापस ले लिया, कहा गलती से हुक्म जारी हुआ था।
महाराष्ट्र की कारगुजार शिंदे हुकूमत ने रियासती वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए फौरन देने का हुक्म 28 नवंबर को जारी किया था, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला शुरू हुआ और हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए कहा कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए फौरन जारी करने वाला फैसला वापस लिया जा रहा है, क्योंकि किसी गलती की वजह से ऐसा हुक्म जारी हो गया था। आपको बता दें कि महकमा बराए अक़लियती तरक्की ने 28 नवंबर को 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को फौरन देने का हुक्म जारी किया था, जिस पर शिवसेना की राज्यसभा रुकन प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाया था और कहा था कि महायुति में रस्साकशी चल रही है, अभी तक वजीर आला का नाम भी तय नहीं हुआ है। इस दौरान रियासती वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिस पर वो सियासत कर रहे हैं। ये फैसला हैरत अंगेज है, एक हिपोक्रेसी है। आपको ये भी बता दें कि हुकूमत ने बजट में 20 करोड़ रुपए का फंड रियासती वक्फ बोर्ड को अलॉट किया था, जिसमें से 10 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को फौरी जारी करने का हुक्म 28 नवंबर को जारी हुआ। रवां साल जून में महकमा अक़लियती फलाह ने औरंगाबाद में वक्फ बोर्ड को 2 करोड़ रुपए की अदायगी भी की थी और ये भी ऐलान किया था कि बाकी रकम की अदायगी बाद में की जाएगी। अमेरिकी रियासत शिकागो के एक शॉपिंग मॉल में खमम के नौजवान को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। ज़राए ने बताया है कि मुतवफ़ी एन साइतेजा 4 महीने क़ब्ल विस्कॉन्सिन की कंकोडिया यूनिवर्सिटी में MS की तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गया था। वो पिछले कुछ दिनों से एक मॉल में काम कर रहा था। जुमा की रात हमलावरों ने उससे पैसे छीनने के बाद उसे गोली मारकर हलाक कर दिया है। सऊदी अरब के सनती शहर जुबैल के दारीन हिल्स इलाके में 2 दिसंबर से 11 जनवरी 2025 तक वंडर हिल्स फेस्टिवल मुनक्किद किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक वंडर हिल्स फेस्टिवल, जो कि सनती शहर जुबैल के डेरिन हिल्स इलाके में मुनक्किद किया जा रहा है, वो तरक्याती मंसूबों में से एक है और खूबसूरत तरीन तकरीबात में से एक है जो मशरक़ी सूबे में वक्तन फ़ौक्तन मुनक्किद किए जाएंगे। ज़राए ने बताया है कि ये तकरीब मशरक़ी सूबे में मुनक्किद होने वाली सबसे खूबसूरत और अहम तकरीबात में से एक होंगी और ममलिकत के बड़े शहरों में मुनक्किद होने वाली बेहतरीन तकरीबात के बराबर होंगी, जहां पर सलाहियतों का मुजाहरा किया जाएगा। पुरकशिश शोज़ होंगे, इख्तिरात और फनी साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वज़ीर डॉक्टर सीता अक्का ने आंगनवाड़ी मराकज़ को दूध की बिलातातुल सप्लाई को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर सीता अक्का ने हफ्ते को सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही आरोग्य लक्ष्मी स्कीम पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। दरअसल उन्होंने आंगनवाड़ी मराकज़ को दूध की सप्लाई के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर अनीता रामचंद्रन, डायरेक्टर कांति वेजली व दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। आपको बता दें कि हुकूमत हामिला ख़वातीन और शीरख्वार बच्चों को ग़िज़ाइयत फराहम करने के मकसद से आरोग्य लक्ष्मी स्कीम नाफिज कर रही है और इस स्कीम के तहत आंगनवाड़ी मराकज़ में हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को रोज़ाना 200 मिलीलीटर दूध तक़सीम किया जाता है। गवर्नमेंट विजय डेयरी आंगनवाड़ी मराकज़ को टेट्रा पैकेट फराहम करती है। वज़ीर सीता अक्का ने कुछ आंगनवाड़ी मराकज़ में दूध की बर वक्त सरबराही ना होने पर संजीदगी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि अपने इंडेंट को कम करने के लिए दूसरी तंजीमों के जरिए दूध की सप्लाई करना काफ़ी नहीं है। सीता अक्का ने खबरदार किया है कि दूध की फराहमी तसल्ली बख्श ना होने की सूरत में हुकूमत सख्त फैसला करेगी। बताया जाता है कि विजय डेयरी ने इस मौके पर कीमतों पर नज़रसानी की तजवीज़ पेश की, लेकिन वज़ीर सीता अक्का ने इनकार कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि 3 माह तक बगैर किसी तातुल के दूध की सरबराही के बाद इस सिलसिले में दोबारा जायजा लिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तफादा कुनिंदगान में चेक्स की तकसीम अमल में आई। मजलिसी फ्लोर लीडर व चंद्रानगुटा रुकने असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हफ्ते को 1271 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए चेक्स की मालियत 12,32,48,430 रुपये रही। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान के अलावा इस्तफादा कुनिंदगान भी मौजूद थे। बताया गया है कि साल 2014 से नवंबर 2024 तक कुल 33,449 चेक्स तकसीम किए गए हैं, जिनकी मालियत 258,48,33,954 रुपये है।
नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत किसानों को मुल्की और गैर मुल्की टेक्नोलॉजी मुहैया करवा रही है। नागर कर्नूल के कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम भूतपुर अमीस्तापुर के ग्राउंड में मुनक़िद ज़रई मेले में हिस्सा लेते हुए उसका बखूबी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जदीद ज़रई तरीक़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की टेक्नोलॉजी किसानों को मुहैया करवाई जा रही है। उंगुल पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारकर गैर कानूनी सरगर्मियों का पर्दाफाश किया। ज़राए ने बताया है कि उंगुल वन टाउन पुलिस ने समाज दुश्मन सरगर्मियों से मुताल्लिक़ इतला पर कार्रवाई करते हुए पार्वतमा मंदिर के करीब V2 स्पा सेंटर पर छापा मारा। छापे के दौरान पुलिस ने गांजे के पैकेट्स व दीगर अशिया बरामद की है। बताया गया है कि पुलिस ने स्पा मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने लोकसभा ज़िमनी इंतखाब में उन्हें कामयाब बनाने पर वायनाड के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो हल्के के लोगों को कभी मायूस नहीं करेंगी। कांग्रेस की वायनाड रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वायनाड के राय दहिंदों से खिताब करते हुए कहा कि वो हर एक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हैं जिन्होंने उन्हें रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हकीकत में ये अवाम की मोहब्बत और एतमाद है। वो पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदे की हैसियत से आवाज़ बुलंद करेंगी और मसाइल को हल करने के लिए अनथक मेहनत करेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों के अकायद, इक़दार, उम्मीदों और उमंगों को हर रोज़ अब और हमेशा के लिए बरकरार रखा जाएगा। दरिया असना उन्होंने कांग्रेस रहनुमा व अपने भाई राहुल गांधी का भी शुक्रिया अदा किया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गैर मुतनासिब असातिज़ात के मामले में महकमा आपाशी के AEE निकेश कुमार के घर पर छापे मारे और 100 करोड़ रुपये से ज़ायद के असासों की निशानदही की। तफसीलात के मुताबिक निकेश कुमार गुज़िश्ता दिनों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। AEE निकेश कुमार पर बफर जोन में क़वायद के खिलाफ तामीरात की इजाज़त देने और भारी रकम वसूल करने का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने गैर मुतनासिब असातिज़ात के मामले में निकेश कुमार के घर पर छापे मारे। ACB के अहदेदारों ने हैदराबाद समेत 20 मुकामात पर तलाशी मुहिम चलाई। निकेश कुमार के घर और उनके रिश्तेदारों के घरों की भी तलाशी ली गई। इस दौरान अहदेदारों ने 100 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों की निशानदही की है। बताया जाता है कि हुकाम ने निकेश कुमार के नाम पर शहर के मसाफात में 3 फार्म हाउस और 3 विलास की निशानदही की है। ACB के अहदेदारों ने मेदक, हैदराबाद और संगारेड्डी में धावे किए हैं। गवर्नमेंट व्हिप आदि श्रीनिवास ने BRS के कारगुजार सदर KTR पर तनकीद करते हुए कहा कि KTR को अपना लहजा दुरुस्त करने की जरूरत है। विमलवाड़ा MLA आदि श्रीनिवास ने सिलसिला शहर में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले ताजरीन का खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने BRS के कारगुजार सदर KTR पर तनकीद करते हुए कहा कि इख्तिदार खो देने की वजह से वो इस तरह के तबसरे कर रहे हैं, उन्हें अपना लहजा बदलने की जरूरत है। आदि श्रीनिवास ने कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में गरीबों की अराजियां छीन ली गई थी। उन्होंने कहा कि KTR की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलसिला को बदनाम होने से बचाएं। रियासत उत्तर प्रदेश के संभल में हालिया तशद्दुद का जायजा लेने पहुंचे समाजवादी पार्टी के 15 रुकनी वफ्द को पुलिस ने रोक दिया। SP कायदीन ने हुकूमत पर गलतियों को छुपाने की कोशिश पर नुक्ताचीनी की। संभल में 24 नवंबर को होने वाली तशद्दुद के बाद हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं। ताहम इंतजामिया ने शहर में बाहर के अफराद पर दाखिले पर 10 दिसंबर तक पाबंदी लगा दी है। समाजवादी पार्टी का एक 15 रुकनी वफ्द संभल में होने वाले तशद्दुद के बारे में मालूमात इकट्ठा करने के लिए हफ्ते को शहर का दौरा करने जा रहा था, लेकिन हुकूमत ने पुलिस की मदद से उन नुमाइंदों को संभल जाने से रोक दिया। पार्टी के रुकने पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क ने बताया कि पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती रोका है, उन्हें संभल जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आवाम को तकालीफ का सामना है। MP ने कहा है कि इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा कि किस तरह से आइन की तौहीन की जा रही है। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने बताया कि समाजवादी पार्टी का वफ्द संभल वाक़े की तफसीलात पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को देने के लिए संभल का दौरा कर रहा था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। पार्टी के वफ्द को मुख्तलिफ मकामात पर
रोका गया है। उन्होंने पूछा है कि संभल जाने से किस तरह से रोका जा सकता है, इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। संभल जा रहे थे, हमारी पार्टी की डेलीगेशन जा रही है और हम कोशिश कर रहे थे कि हम वहाँ पहुँच सके। जो वहाँ पर घटना हुई है, जो हिंसा हुई है वहाँ प्रशासन द्वारा, उसका सही जायजा लेके कौन अधिकारी इन्वॉल्व थे, कौन कौन लोग इस मामले में, इस घटना को किन लोगों ने अंजाम दिया, उसकी जानकारी लेकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपने वाले थे और उस पर कार्रवाई भी करने की मांग करते, उसी के लिए हम पहुंच रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, पहले 30 तारीख तक हमें बोला गया कि कोई नहीं जा सकता, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी हमें रोका जा रहा है। अब 10 तारीख तक इन्होंने रोकथाम रखी है। 3 सांसदों को गाजियाबाद में रोक दिया गया है। जी हाँ, सबको अलग अलग जगहों पर, 15 लोग की डेलीगेशन थी, अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि लोकतंत्र में इस तरीके से कैसे ये रोक के अपना काम कर सकते हैं। जी। तो आपके जो लखनऊ में नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। हाँ जी, सबको अलग अलग जगहों पे, 15 लोगों का डेलीगेशन था, इसलिए सबको अलग अलग जगह पर रोका गया है। तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे देखिए, जैसे ही हमें बंदिश खुलेगी हम वहाँ पर पहुंचेंगे ज़रूर, और सबसे पहले जायज़ा लेकर, और वैसे भी हमें फ़ोन के माध्यम से भी लोगों से संपर्क हो रहा है, तो जानकारी तो है, लेकिन हम वहाँ पर पहुंचकर अपने लोगों की हिम्मत बढ़ाना चाहते थे। और जो कार्रवाई है उसकी मांग हम लगातार कर रहे हैं। संसद चलने नहीं दी जा रही है, लेकिन जैसे ही संसद में मौका मिलेगा, सबसे पहले हम, जब तक संभल के मुद्दे पर बात ना हो, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सरकार ने इसमें जांच कमेटी गठित करी है। जी हाँ, और हमारी यही मांग है कि इसमें जांच कमेटी में जो अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से 5 लोगों की जान गई है, जिन्होंने हत्या करी है, उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।